سے بڑا دکھ کوئی نہیں کہ ہم اس وقت اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی قربت نہیں ہم دیکھ سکتے۔ کوئی بھی برانڈ، کوئی بھی تخلیق اپنے خالق سے جدا ہو کر نہیں رہ سکتا۔ ہماری جگہ جگہ برانڈ ہمارا لگا ہے اللہ، تو اللہ کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ یقین جانے اس کے بغیر نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں، اللہ جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ بظاہر ہی لگتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے کہ اللہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے اور ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہی سختیاں ہوں گی، یہی دنیا ہوگی، یہی لوگ ہوں گے، یہی ٹانگیں کھینچنے والے ہوں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ 10 سال کا کام آپ سے 1 سال میں لے لیتا ہے۔ اللہ آپ کو پر لگا دیتا ہے، سپیڈ اپ کر دیتا ہے۔ بہت ساری کمیوں کجیوں کو وہ ویسے ہی اگنور کر دیتا ہے اور آپ کو آگے لے جاتا ہے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ابھی آپ کے جسم میں طاقت ہے، روح میں جوش ہے، ولولہ ہے، نظر بہت تیز دکھتی ہے، آپ کو بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی شاید میری باتوں پر یقین آئے، مگر ایک وقت آئے گا جب آپ کی ایفرٹس بالکل ضائع کر دی جائیں گی۔ روئیں گے، آنکھوں بے اختیار آنکھیں بھیگیں گی، آپ بے اختیار آپ اپنے ہاتھوں کی کشکول بنائیں گے۔ جب زمین کے دروازے بند ہو جائیں گے، آسمان کا دروازہ کھلا نظر آئے گا، بے اختیار آنکھیں اوپر جائیں گی۔ وہ وقت آئے گا، وہ اپنی قدرت سے منوائے گا۔ اس وقت جب پکاریں گے تو کس منہ سے پکاریں گے؟ جب اس سے علیق سلاق نہیں ہوگی، جب اس سے راہ و رسم نہیں ہوگا، جب اس سے واقفیت نہیں ہوگی، اس طرح پکاریں گے اسے۔ اس لیے اس کو ملا لیں اپنے ساتھ۔ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، ضرور کیجئے، مطلوب ہے، مقصود ہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اگر اس ایک کے بعد جتنے بھی صفر لگانا چاہتے ہیں ضرور لگائیے، اس کو ملا لیں اپنے ساتھ۔ میرے بیٹے مسنہ کا او لیول کے امتحان تھے، پہلے ظاہر اتنے یہ امتحان تھے، ہر بچے کا پہلا بڑا امتحان ہوتا ہے تو بڑا سٹریس ہوتا ہے بچوں میں۔ میں دیکھتا تھا ادھر بچے بڑے پریشان۔ تو ان دنوں ایک چیز بڑی میں نے نوٹ کی، میرے بیٹے نے بھی کی، کہ وہ ہر بچہ اس وقت نمازی بن جاتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا یہ تو صرف مطلب کے سجدیاں نا۔ میں نے اسے ایک بات کی، وہ یاد آ گئی مجھے۔ میں نے اسے کہا کہ تم آج بھی ماشاءاللہ نمازی ہیں شروع سے۔ میں کہا آج جو تم سجدے کرو گے نا، اس جیسے سجدوں کی ویلیو آج کسی کی بھی نہیں۔ آج جب تم اللہ کو پکارو گے نا تو اللہ آج تمہارے کہے کا مان رکھے گا، کیونکہ تم نے اس کو اس وقت بھی پکارا تھا جب تمہیں ضرورت نہیں تھی۔ آج جو تم سجدے کرنے کا جو تمہیں مزہ آئے گا نا، تم اللہ کو کہہ سکتے یا اللہ میں وہی ہوں جو تجھے شروع سے پکارتا آیا ہے۔ آج مجھے تیری ضرورت ہے، آج مجھے تیری ضرورت۔ اللہ تمہارے لیے ضرور ادھر موجود ہوگا، خود کھڑا ہوگا۔ آج جو اطمینان، جو تمہیں طاقت جو تمہیں آج ملے گی کبھی کسی کو نہیں ملے گی۔ ہاں سجدے ضرور کرنے چاہیے، پکارنا ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے راہ و رسم بھی تو ہو، آپ کو جانتے بھی تو ہو کہ میرا خدا جس کو میں پکار رہا ہوں وہ کون۔ پچھلے دنوں مسجد میں نماز پڑھا تھا تو عجیب سا ایک تجربہ ہوا۔ ایک شخص، ایک باپ تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ 4-5 سال کا۔ اس نے اپنے باپ کو پکارا مگر اس نیت باندھ چکا تھا، تو اس نے اس کو جواب نہیں دیا۔ بچے نے 1-2 دفعہ اس کو پکارا، اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ بچہ چیخا، ایسی کربناک اس کی چیخ تھی، ایسی درد سے بھری ہوئی چیخ تھی، پوری مسجد میں اس کی آواز گونجی۔ درد سے جو چیخ رہا تھا کہ اس کو اتنی حیرانگی تھی اس کی چیخوں میں، اس کے ایکسپریشن میں، کہ میرا باپ مجھے جواب نہیں دے رہا۔ یہ وہ تجربہ تھا جو اس کو پہلے کبھی نہیں ہوا، اور وہ ایک دم سے خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ حالانکہ باپ اس کا اس کی نظر کے سامنے موجود ہے، غائب نہیں ہوا، صرف ریسپونڈ نہیں کر رہا، تو اس کی یہ حالت ہو گئی۔ فوراً سوچا کہ اللہ اور بندے کا تعلق بھی تو یہی ہے، خدا نہ خواستہ اس نے کبھی ہمیں ریسپونڈ نہ کیا تو سوچے ہمارا کیا حال۔ تو ہمیں ایک ایک سانس کے ساتھ ریسپونس دے رہا ہے۔ ایک سانس لیتے ہیں، دوسری سانس اجازت لیتی ہے اس سے کہ ہم آئیں کہ نہ آئیں۔ وہ ریسپونس کرتا ہے تو دوسری سانس کرتا ہے۔ وہ تو موجود ہے، لیکن سوچئے
क्या उस बच्चे जितना प्यार भी नहीं, उतना ईमान भी नहीं? अगर उसने हमें से रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया तो क्या बनेगा? अभी से तय कर लीजिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी तरजीहात क्या है, और आपका खेलने का मैदान क्या है, आपकी जिंदगी गुजारने का मैदान क्या है। ये ना हो कि फिर आखिरी वक्त में जब वो अपने जोर पे आजमाएगा तो फिर हम फौरन आसमान की तरफ नजरें उठेंगी, फिर यूं झुकेंगे, हमारे सर भी और हाथ उठेंगे, यूं बार बार उठेंगे, और उस वक्त दिल में खलिश होगी, पछतावा होगा। वो मनवा लेगा आपको, अभी वो सिर्फ बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा रहा है, पैगामात दे रहा है, और ये वो काम है जो आपने खुद करने है। क्या ये नफ्से मुतमइन्ना का जो टाइटल है, टॉपर्स का जो टाइटल, हमारे अंदर तड़प पैदा नहीं करता? अपनी सारी सलाहियतों को उसकी तरफ एक दफा लगा कर देखिए, फिर देखिए वो सारी कायनात को, पूरी गैलेक्सीज को आपके ऊपर ना लगाए तो कहिएगा। देखिए उसका एहतमाम, उसका मान देखिए क्या है। शैतान ने जब कहा ना कि मैं ये शख्स जिसको तूने इतना मर्तबा दिया, ग्रेस दी, ये तो डिजर्व नहीं करता, उसने सिर्फ इतना कहा, जब रिजेक्टेड हो गया, उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं इसके आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह से बैठूंगा और इसको गुमराह करूंगा, मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि ये इसका अहल नहीं था, मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि इसका अहल नहीं था। उसने क्या कहा कि मैं तुझे साबित करके बताऊंगा कि ये शुक्रगुजार नहीं। तो अल्लाह को देखिए कितना मान था। उसने कहा कि तू मुझे चैलेंज करता है। सूरह अराफ और सूरह बनी इसराइल के मुख्तलिफ मुकाम से अल्लाह ने कहा कि तू मुझे चैलेंज करता है कि ये मेरा शुक्रगुजारी नहीं करेगा, देख मुझे इस पर कितना मान है, देख मैं तेरे इस चैलेंज को मजीद टफ करता हूं। उसने तो सिर्फ ये कहा कि मैं इसके आगे पीछे दाएं बाएं से हमला करूंगा। अल्लाह ने कहा कि नहीं, अब देख मैं इस चैलेंज को कितना टफ करता हूं, तू उसको देख सकेगा, वो तुझे नहीं देख सकेंगे। कुरान में है ना कि इसके लश्कर तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम नहीं देख सकते। वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, तू उसके दिल में, उसके कलेजे में वसवसे डाल लेगा, ये नहीं डाल सकेंगे। देखिए कितना टफ कंपटीशन, अल्लाह ने इस चैलेंज को कितना टफ करता जा रहा है। उसने कहा कि तू उसके जिस्म में खून की तरह गर्दिश करेगा, खून में उसमें दाखिल हो जाएगा, ये नहीं कर सकेगा। हमें शैतान नजर आते हैं, हम उसके दिल में कोई वसवसे डाल सकते हैं? तू माल और औलाद में इनमें साझा लगाएगा, शरीका लगाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर भी ये बेदेखे मुझे मानेंगे। इनमें एक ब्रीड ऐसी लाजिमन होगी जो मुझे बेदेखे मानेगी, जो मुझे नहीं देख सकेंगे, मेरे फरिश्तों को, मेरी जन्नतों को नहीं देख सकेंगे, फिर भी मुझे मानेंगे। और अगर ये तू अपने चैलेंज में नाकाम हुआ तो फिर लिख दई, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे उन मुखलिस बंदों में तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। और वो सूरह इब्राहिम में आता है कि आखिरी उसके जो अल्फाज होंगे यही होंगे, मैंने जितने, वो इतराफ करेगा मैंने जितने वादे किए थे सब झूठ थे, अल्लाह के सारे वादे थे वो सच्चे थे। अल्लाह को मान देखिए कितना, इस वजह से नहीं कि उसकी तख्लीक है आप, इस वजह से कि उसने आपको फ्री विल दी थी। उस फ्री विल की बुनियाद पर जो आप अमल करके दिखाएंगे, इस वजह से अल्लाह आप पर मान करता है। इसलिए अभी से तय कर लीजिए, उन जगहों पर, उन मुकामात पर जिनको अल्लाह आपको देखना चाहता है। ख्वाब देखिए, जरूर देखिए, मगर नफ्से मुतमइन्ना का ख्वाब देखिए। एक कामयाब इंसान ख्वाब देखता है और उसको फिर हकीकत का रूप देता है, लेकिन जो लीडर होता है वो पहले अमल करके उसको हकीकत बनाता है और फिर लोगों को ख्वाब दिखाता है। और आपको बताऊं कि सिर्फ अबस नहीं है, अल्लाह ताला जगह जगह
लोगों से सनद मांगता है, तस्दीक मांगता है। वो कहता है कि शिरक किया तुमने, इसकी कोई सनद है, कोई तस्दीक है? सोचिए कि अगर वो लोगों से सनद मांगता है तो सनद देता भी होगा। कैसे हो सकता है कि सनद दे ना? उसने अपने बंदों को जो इस टाइटल तक पहुंचे उनको इस कुरान में ही सनद दी, इस दुनिया में ही सनद दी। अब देखिए, सनद अगर आपने देखनी हो, अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको छोड़ा नहीं और ना ही हम आपसे नाराज हुए। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, आगे फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, हम अनकरीब आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। सारी दुनिया अल्लाह को राजी करना चाहती है और अल्लाह यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि मैं तुझे राजी करूंगा। कितनी बड़ी सनद है। साथ ही सूरह लैल है, उसमें हज़रत बकर सिद्दीक का नाम लिए बगैर उनकी सिफात गिनवाई और आखिर में कहा वला सौफा यरदा, हम अनकरीब इसको भी राजी कर देंगे। कितनी बड़ी सनद है। हो नहीं सकता कि आप उसके लिए काम करें, उसको पहले नंबर पे रखें, वो दुनिया से ना मनवाए आपको, हो नहीं सकता। मुहाजिरीन और अंसार के लिए कितनी दफा उसने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, उससे राजी होकर वो मैं उनसे राजी हूं। हज़रत उमर के बारे में पढ़िए, 17 अहकामात है, 17 अहकामात जो हज़रत उमर के ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक नाजिल किए। कितनी बड़ी सनद है। वो एक एक शख्स जिसके बारे में सनद नाजिल की अल्लाह ने, पूरे जमाने के लिए काफी हो गए वो शख्स, एक एक शख्स। हो नहीं सकता। तो हज़रात, आखिर में अपने दिल की एक चाहत, दिल की एक ख्वाहिश अर्ज करता चलो और उसके बाद अपने इस गुफ्तगू को खत्म करता हूं। इस सारे प्रोसीजर में, इस सारी जिंदगी के सफर में जान लीजिए कि अल्लाह आपको दो बातों से जरूर आजमाएगा। दो बातें ज़हन में रखिए। आखिरी बात अर्ज करता चलो, अल्लाह आपने जब प्योरिटी पे रख लिया, अपने जो तरजीहात है उसको सेट कर लिया, आपको अब अपने आप को क्वालिफाई करवाना है। अल्लाह दो बातों से आपको हमेशा आजमाएगा, इसको अच्छी तरह से जान लीजिए। अल्लाह आपसे छीन कर आजमाएगा, लेकर आजमाएगा कि आप सब्र करते हैं कि नहीं करते। अल्लाह आपको बगैर इस्तेहकाक के देकर आजमाएगा कि आप शुक्र करते हैं कि नहीं करते। ये दो चीजें हैं। ये सारी जिंदगी अगर आपको ये करनी आ गई, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, आप अल्लाह से जो चाहे मनवा लें। ये दो चीजें आपको करनी आ गई। सब्र यह है कि जब गम मिले, जब कुछ छीन लिया जाए, आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपके ग्रेड्स नहीं आए, आपका रिजल्ट नहीं आया, ऐसा होता है। अल्लाह आपको आजमा रहा है कि आप सब्र करते हैं कि नहीं करते, उस पर राजी रहते हैं कि नहीं रहते। बगैर कोशिश, बगैर स्ट्रगल के अल्लाह आपको दे रहा है। अल्लाह आपको आजमाना चाह रहा है कि आप शुक्र करते हैं कि नहीं करते। आज चूंकि मैंने हर चीज का टॉप लेवल बताया, तो आज सब्र और शुक्र का भी टॉप लेवल बताऊं। इंसान सब्र करता है, आंखों से आंसू बहते हैं, गमज़दा होता है, रोक लेता है अपने आप को, ये सब्र है। शुक्र में खुश होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ये शुक्र है। लेकिन इसका टॉप लेवल क्या है? दो चीजें अपनी जिंदगी में ले आइए, आप अल्लाह से कुछ भी मनवा सकते हैं। सब्र के वक्त मुस्कुराना सीख लीजिए और शुक्र के वक्त रोना सीख लीजिए। आप अल्लाह से कुछ भी मनवा सकते हैं। अल्लाह आपके लिए आपकी तकदीर को बदल देगा। ये बहुत बड़े मुकाम है, इसको हल्का मत जानिए। ये दो चीजें सीख लीजिए। सब्र के वक्त मुस्कुराना मतलब क्या? आप अल्लाह अगर वाकईतन पहली प्रायोरिटी पे होगा, तरजीह पे होगा, तो उसकी तरफ से आने वाला गम भी आपको अजीज होगा कि मेरे रब की तरफ से आया, मेरे महबूब की तरफ से आया, उसने मुझे इस काबिल समझा। फुज़ैल बिन अयाज के साथ एक शख्स रहता था, 30 साल तक रहा। वो कहता मैंने कभी फुज़ैल बिन अयाज को हंसते हुए नहीं देखा। एक दिन सिर्फ उनको हंसते हुए देखा जब उनका जवान बेटा फौत हुआ। उस दिन वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा हजरत आज 30 सालों में मुस्कुराए भी तो आज? उन्होंने कहा कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए एक बात को पसंद किया और मैंने उसकी पसंद को पसंद किया, इसलिए आज अपनी खुशकिस्मती पर मुस्कुरा रहा हूं। शुक्र में रोना क्या है?
जब आप ये समझेंगे कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है मैं डिजर्व नहीं करता था, तब उसकी वाकईतन उसकी नेमत, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार आपको समझ में आएगा और आप शुक्र में आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। आप पीछे मुड़ के देख लीजिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र में रोया करते थे, इस कदर रोते थे कि वो जगह गीली हो जाती थी। पूछते क्यों रोते हैं? इसलिए कि मैं उसका शुक्र ना करूं, मुझे क्या क्या कुछ दे दिया। जब आप ये दो चीजें अपने आप को समझ लेंगे, गम आने वाला, लेने वाला, मेरी एफर्ट्स को जाया करने वाला वो अल्लाह है और उसकी तरफ से फैसला है, तब आप सब्र करेंगे, सब्र में मुस्कुराएंगे। और जब आप समझेंगे कि मुझे बगैर इस्तेहकाक के हर चीज मिल रही है, मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तब ये शुक्र में आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। ये दो चीजें कर लीजिए जिंदगी में। खुदा की कसम, हम जैसे आपके पीछे नीयत ना बांधे तो मेरा नाम मिटा दीजिए। खुदा की कसम, अगर लोग आपसे पूछ के, जमाने आपसे पूछ के सांसें ना ले तो मेरा नाम मिटा दीजिए। करने के काम असल ये है, ये मकसद है, इनको बनाए। मुआशरे आपसे पूछकर अगर आपने निसाब ना तय करे तो कहिएगा इसे काम करने के लिए। सब्र में मुस्कुराना, और खुदा आपको बार बार आजमाएगा, जमीन और आसमान हिलाएगा इन्हीं दो क्राइटेरिया में। वो आपसे छीनेगा, आपकी एफर्ट्स को जाया करेगा, चेक करेगा कि मेरा बंदा मुझ पर यकीन कितना रखता है, कितना उसको मुझ पर ट्रस्ट है, और आपको नवाजेगा। उस वक्त जब आपका कुछ बनता ही नहीं था, आपने कुछ भी नहीं किया, तो आपको देगा, चेक करेगा कि शुक्र करता है कि नहीं करता। और हमारे यहाँ हमसे गलती क्या होती है, हम सब्र में रोते हैं, हालांकि सब्र में मुस्कुराना असल काम है, उन टॉपर्स का काम है, उन नफ्स मुतमइन्ना का काम। रोती तो सारी दुनिया है, और शुक्र में हम सेलिब्रेशन करते हैं, हम हंसते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह देते हैं। जो नफ्स मुतमइन्ना होगा वो उस वक्त उसकी जायनमाज गीली हो रही होगी उसके आंसुओं से कि अल्लाह, मैं तो डिजर्व भी नहीं करता था, तूने इतना कुछ दे दिया, तू इतना प्यार करता, मैं शुक्र तेरा किस तरह अदा करूं। कुछ भी ले लीजिएगा आप, वो जो पहली डोमेन थी ना, जो उसने आपके नसीब में नहीं लिखी, आप ये भी मांग लीजिएगा, वो आपके नसीब में लिख देगा। ये दो काम करके दीजिए। आखिर में मैं आपसे अपनी चाहत एक अर्ज करूं। मेरे बच्चे बैठे हैं यहां पर, मेरी जिंदगी का सरमाया, मेरी जिंदगी की चाहत, सबसे बड़ी चाहत यह है कि सुना है कि आखिरत में लोग अपने माँ बाप से, बाप के नाम से या माँ के नाम, बाप के नाम से उठाए जाएंगे। मेरी जिंदगी की चाहत यह है कि आप बच्चों से उठाए जाए हैं, इनके नाम इतना ऊपर लेके जाएं, अपने आप को इस मुकाम पर लेके जाएं कि हम फख्र करें आपसे, अपनी निस्बत से, आपकी निस्बत से हमें पुकारा जाए। जब आप नफ्स मुतमइन्ना की उस बुलंद तरीन मुकाम पर फाइज हों, जहां पर अल्लाह को प्रेजेंट कर रहा हो, तब अल्लाह, मेरी जो सबसे बड़ी चाहत है कि लोग देखें, फरिश्ते देखें और कहें कि ये देखो, ये वो है जिसका बेटा नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचा, इसका शागिर्द नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचा, इसका फलां नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचा। ये देखो, ये उसका बाप है, ये उसका उस्ताद है, ये उसका चचा है, ये उसका फलां। ये है मेरी सबसे बड़ी चाहत कि अल्लाह मुझसे पूछे कि तूने क्या किया, तो इसे कह कर जाऊं कि आने वाली नस्लों में मैं तेरा नाम छोड़ रहा हूं। उन्हें बताकर गया था कि आप लोगों की प्रायोरिटी क्या है, और उस वक्त जब पुकारा जाए हमें आप लोगों की निस्बत से, तो उस वक्त वो आंसू जो उनसे होंगे, वो खुशी के आंसू जो बहें, वो है मेरी सबसे बड़ी चाहत। और वो आपको बताऊं कि इस आंखों के प्याले में जो सबसे आखिरी जो उनसे कतरे होते हैं ना, वो खुशी के आंसू के, उसके बाद वो पानी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये है मेरी चाहतें, ये है हमारी चाहतें कि आप अपनी जिंदगी के इस सफर में अभी से अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। कंक्लूड कर देता हूं सारी गुफ्तगू को, ताकि कोई इबहाम ना रहे। सबसे पहले अपने अंदर तलब पैदा कीजिए, अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा अल्लाह का इकराम समझिए, उसकी नेमत समझिए, उसका तोहफा समझिए, और उसके बाद उन 3 डोमेन्स को आप जहन में रखिए, उन मैदानों को जहन में रखिए। उन 2 डोमेन्स में नहीं जाना, हरगिज नहीं जाना।
جو अल्लाह ने आपके लिए नहीं लिखी। यही तकदीर है। पहली 2 डोमेन है, उसकी तकदीर अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। तीसरी डोमेन जो सी है उसमें सलाहियतें, वो सारी चीजें देकर अल्लाह ने वो कलम आपको पकड़ा दिया कि अब तो खुद लिख। वो तीसरी डोमेन है आपकी, वही करने का काम है। और अपने मकसद को पहचानिए, अपने मकसद को पहचानिए, अपने मकसद को पहचानिए। डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबार करना ये मकसद नहीं है। आप दूसरी डोमेन में खेलते रहेंगे सारी जिंदगी। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए आपको बनाया उसको पहचानिए और पैशन को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। अपनी तीनों सलाहियतें लगा दीजिए, तीनों लाइफ जो उनसे आपके जो अल्लाह ने वजूद दी है उनको झोंक दीजिए उनमें, और फिर उस एक को पहले रखिए। उसके बाद जितनी मर्जी कामयाबियां हैं समेटते जाइए, मगर असल बात उस एक को पहले रखिए और उस एक को अपने साथ मिला लीजिए। जल्दी या बदेर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, अभी से उसको मिला लीजिए। और इसमें जो सबसे बड़े हथियार होंगे आपके, जिसमें आप सबसे ज्यादा आजमाए जाएंगे, सब्र और शुक्र। सब्र के वक्त मुस्कुराना सीख लीजिए और शुक्र के वक्त रोना सीख लीजिए। आप मुकद्दर के सिकंदर हैं। फिर वही है आप कि हर तकदीर से पहले खुदा आपसे पूछेगा कि बता तेरी रजा क्या। ये जहां चीज है क्या, हम तेरे हैं, लोहो कलम तेरे हैं। ये है आपकी जिंदगी जो आपने तय करनी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर मैं आगे आपको दे रहा हूं कि उन्होंने जब अपना पैगाम पहुंचा दिया तो कहा फल युबल्लिग शाहिद वल गायब। और वो कहा था उन्होंने अपने साथियों से जो यहाँ पर मौजूद नहीं उन तक फैला दीजिए। ये है आपकी जिंदगी। अल्लाह ताला मेरी इन चाहतों को अल्लाह ताला कबूल करे, मेरी चाहतों को अल्लाह ताला पूरा करे। आप सबको और हम सबको उस नफ्स मुतमइन्ना के उस मुकाम पर फाइज करे जहां पर मैं आप पर फख्र कर सकूं, मैं आपकी निस्बत पर फख्र कर सकूं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।